यस सर। कौन सा ऐसा मैंने कस्टमर देखा है कि जो अननोन गर्ल्स के साथ एक ही कमरे को शेयर करते हुए 6 लोग। योर एंट्री इज नॉट इन द रजिस्टर। यस सर। योर नेम वॉज नेवर कम्युनिकेटेड टू द पुलिस। यू डोंट हैव एनी रिसीप्ट। You were residing in a one room along with 5 other girls. Come to Gwalior. Sir, I was as a tourist. अच्छी बात है सर। Yes, sir. आपका वो कहाँ है होटल की बुकिंग? सर होटल की बुकिंग सर रजिस्ट्रेशन में ही थी। नहीं है सर। इट इज ऑन द आई हैव साइंड। मैंने पूरा नहीं है। आई हैव सीन द डायरी। सर it was the liability of the hospital. Okay, it was the liability of the hotel. Sorry sir, the hotel. आपकी वो रसीद कहाँ है सर जिससे आपने पैसे जमा किए थे? They must have given you. Sir, I have given in cash. Of course, then they must have given you the receipt. Sir, I'm not having the receipt right now. आप कैश दे दोगे और रिसीट नहीं लोगे? सर रसीद बाद में देने के लिए अच्छा, रिसीट बाद में देंगे, एंट्री नहीं करेंगे। हमारे पास सारा रिकॉर्ड है सर। I have seen the diary. This is the third bail application, the bail application of the third accused. Sir, the main allegation on me. Whatever it is, sir. Yes, sir. You are the resident of which place? Sir, of Delhi. Delhi. आप यहाँ पे कब आए थे? Sir, before 17, I think so. I don't want before 17. Okay. Tell me the date. Sir, I can only ask from the accused. I don't know, sir. You have filed an application for bail. I have not compelled you to file. Once you have filed, either give the answer or then face the consequences. Sir, your entry is not in the register. Yes, sir. Your name was never communicated to the police. You don't have any receipt. You were residing in a one room along with 5 other girls. Yes, sir. कौन सा ऐसा मैंने कस्टमर देखा है कि जो अननोन गर्ल्स के साथ एक ही कमरे को शेयर करते हुए 6 लोग? Sir, this is the main allegation Sir, which the police authority has put on me. Of course. Yes, sir. Sir, main allegation on me. Mr. Counsel, Lordship. आपसे मैंने क्या पूछा? Sir, I'll आपसे मैंने क्या पूछा? Lordship, I request Just a minute. Yes, sir. मैंने आपसे क्या पूछा? या मेरी आवाज का वॉल्यूम कम करो, थोड़ी आवाज तेज जा रही है। मैंने आपसे क्या पूछा? Yes, sir. आपका वो रजिस्टर में एंट्री है क्या? बोले सर इट इज नन ऑफ माय बिजनेस। राइट? यस यू आर राइट। Sir, I have signed. जस्ट अ मिनट। Yes, sir. फाइन सर, नो प्रॉब्लम। आपने पैसे जमा किए, उसकी रसीद दे दो। आई डोंट हैव एनी रिसीट। Sir, my Aadhaar card is attached with the hotel. That is in the record. Yes, sir. I am aware, sir. I have seen the diary. Don't worry. Lordship, I have seen the diary. Yes, sir. आपके पास पैसे जमा करने की रसीद नहीं है। आप कब आए ग्वालियर में, आपको पता नहीं है। सर, द ओनली ऑफेंस जो मेरे पे एलिगेशन है वो ये है ना कि मैं सब प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में हूँ अकॉर्डिंग टू द एफआईआर एंड एज पर द प्रोसिक्यूशन केस। राइट सर। मैं प्रोस्टिट्यूशन का काम करती हूँ और दूसरा एलिगेशन है अनलॉफुल मैंने मनी प्रोस्टिट्यूशन के उससे कमाई है खुद के लिए। सर, आई एम रिलाइंग ऑन द जजमेंट सर। हाँ, क्या कह रहा है ये? या तो ऐसी बहस करो ना। यस जी बताएं। लॉर्डशिप, मेन ऑर्डर का पहले मैं पढ़ देता हूँ। मेन ऑर्डर CRA नंबर 135 by 2010। राइट सर। आफ्टर पैराग्राफ 5 सर, लास्ट लाइन। पैराग्राफ 5 और पेज 5? नो सर, इट इज नॉट इन पेजिंग। ओ सर, पेजिंग तो है 19/5 के ऑर्डर में है साहब। मेरे भाई, ये दूसरे वाला जो ऑर्डर मैंने दिखा आपने 135 वाला 14 फरवरी एक ही उसके हैं और उसमें ही बाद में ऑर्डर पास किए सर। अच्छा, आप ये वाला दूसरा वाला जो लंबा वाला ऑर्डर है। राइट सर। ये क्या कहता है? पैराग्राफ 5 सर, उसमें लास्ट में, although we have dismissed this appeal, we strongly feel that the central and the state government through social welfare board should prepare scheme for rehabilitation all over the country for physical and sexual abused women commonly known as prostitutes, as we are of the view that the prostitute also have a right to live with dignity under Article 21 of the Constitution of India, since they are also human beings and their problems also need to be addressed. Right sir. सर, इसमें फिर मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, उसके नीचे आ जाता हूँ। Hence we direct the state government and the central government and the state government to prepare scheme for giving technical and vocational training to sex workers and sexually abused women in the city of the in the cities of the India.
in India. सर ये सर इसके बाद सर इसमें साहब जस्ट अ मिनट, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं? मुझे पैराग्राफिंग दिख नहीं रही है इसमें। सर फिर से पढ़ देते आप ये पकड़िए, इसको आप पैराग्राफ 6 आप अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक साइड है। लाइन कर दीजिए, कहाँ से पढ़ना चाह रहे हैं। ये सब दूसरा वाला जो दूसरा वाला, मैं पूरा अंडरलाइन कर दूं सर? हाँ आप उसको अंडरलाइन कर जी दोनों में कर दूं सर? हाँ, जो आपने पढ़ना है उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि हम लोग कम्युनिकेशन गैप ना रहे। सबसे पहले एक चीज बोलूंगा सर, डॉट सर। दैट इज विद रिगार्ड टू योर प्रिपरेशन। यस सर। ठीक है ना, यस मैं यही तो कहता हूँ, वॉट एवर द रिजल्ट में बी, योर परफॉर्मेंस मस्ट शो दैट यू हैव टेकन द केस इन अ सीरियस मैनर एंड यू हैव प्रिपेयर्ड द केस. थैंक यू सर। So instead of going on merits on sexual aspects, you are saying that in case if you are treated as a sex worker also, then still you are entitled to live your life with dignity, and it is the duty of the state government to formulate certain schemes for rehabilitation of this. यस Right? Right, sir. जी सर। हाँ सर, मैं दूसरा भी मार्क कर देता हूँ सर। हाँ हाँ, मैडम ये ग्वालियर का है, इसको डायरी बुलवाइएगा, 2:15 बजे लेंगे। मुझे इनके पास कुछ फोटो कॉपीज दिख रही थी, तो मैंने इसलिए इनको आर्ग्यू करवाना शुरू किया था कि देखो ये फोटो कॉपीज है क्या। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बोर्ड पे आना, क्योंकि साहब मुझे लगता है मुझे प्रिपेयर होकर ही आना पड़ेगा, ऐसे ही तो मुझे रिलीफ नहीं मिलने वाला। तो सर, साहब मैं वकालत- बहुत मेहनत करता हूँ तब जाके मैं आता हूँ। सर वकालत क्या होती है सर? हाथ हिलाते हुए कोर्ट जाना? नहीं सर। सर जब कोई आदमी बीमार होता है तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास भागता है ना, एज पर हिज फाइनेंशियल कैपेसिटी। वाई सर? वो सड़क किनारे एक टेंट लगा के जो लोग बैठे होते हैं उनसे तो हार्ट का इलाज नहीं करवाता ना। नहीं। तो आप लोग अपने आप को स्पेशलिस्ट डॉक्टर के बराबर क्यों नहीं मानते हो सर? धीरे धीरे हो जाएगी। आप लोग जिस दिन बिना पढ़े आओ उस दिन आपको लगना चाहिए कि यार मैं आज अपने जॉब से जस्टिस नहीं कर रहा हूँ। जिस दिन पढ़ के आओ देन दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। मैंने कुछ फोटो कॉपीज देखी हैं आपके उसमें, तो मुझे लगा कुछ जजमेंट्स है, तो मैं नहीं तो बिना डायरी के मैं सुनता नहीं हूँ। तो पहले मैंने सोचा नहीं देने पे भी काम हो जाए शायद। नहीं, बिना डायरी के तो फर्स्ट एप्लीकेशन कभी डिसाइड नहीं होती है, क्योंकि हमने जो भी डायरी देखी है उसको उस अक्यूज के कंसर्निंग देखी है, आपके लिए कंसर्निंग नहीं देखी। शर्मा जी दीजिए। तो आपका बेसिकली कहना ये है कि सेक्स वर्कर्स दे शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन ऑफेंडर, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू लिव देयर लाइफ विद डिग्निटी। अब एक क्वेश्चन से जो एपेक्स कोर्ट का ऐसा मैं तो नो प्रॉब्लम, मेरा तो कोई व्यू ही नहीं है पर्सनल। नो प्रॉब्लम सर। दे आर ह्यूमन बींग। अभी आपने देखा होगा कि भाई एक आदमी कन्विक्टेड, डॉक्टर कहता 80% है उसका ब्लॉकेज है और उसको एंजियोप्लास्टी नहीं कर रहा। आप मेरा रिएक्शन तो देखिए कि मेरे लिए भी तो लगता है हर आदमी की लाइफ प्रेशियस है सर। अब मेरा एक क्वेश्चन आएगा सर लंच के बाद, यस सर। क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इन एडवांस। If somebody is voluntarily involved in this in such type of act, there may be several circumstances. These circumstances compelling a person to get into all these activities. But if somebody adopts it as a profession for his or her pleasure, without there being any compulsion, whether that said person can be treated as an offender or not. Involvement in prostitution by itself cannot be said that they are not entitled to live their life with dignity. There may be lot of compulsions कि भाई वहाँ पे कोई आदमी
माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, या जैसा भी देयर मे बी बैकग्राउंड्स, but if somebody is there just for her pleasure in order to earn money and is moving from one part of the country to the another part of the country, whether that girl is also entitled for this same treatment for which the other persons who are in this profession but because of some compulsion, or they can be differentiated from the another group of prostitutes. ये क्वेश्चन आएगा, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए। Yes. राइट। पर सर आपने ये मत ध्यान में रखिएगा कि सर आज को मेहनत करके आता हूँ, ये ध्यान में रखिएगा कि सर आज मैं मेहनत नहीं कर पाया। मेहनत ना कर पाना शुड बी एन एक्सेप्शन। और आपको ये मेरे शब्दों का अर्थ शायद 15-20 साल के बाद जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि साहब उस समय ये जो बोले गए शब्द थे, और जब आप आज फसल पक गई है और आप जो है काट रहे हो तब आपको समझ में आएगा। और जब समझ में आएगा तो दैट यू विल एनकरेज योर यंग जनरेशन ऑल्सो, राइट। बट एज अ यंग लॉयर you have thought from different point of view, from legal point of view, instead of just saying that I am a victim and this and that. You have made preparation. और मुझे बस फोटोकॉपी दिखी थी इसलिए मैंने कहा कि यार अभी इसको पास ओवर किया, बढ़ाया, तो मुझे नहीं मालूम है कि आपका प्रिपरेशन क्या है। So it was a deliberate act on my part to know that what is the level of your preparation so that I can give you the questions in advance, right? So pass over, sir.